سابق وزیر ہریش راؤ نے اسپیکر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کی تائید کرتے ہوئے کالا رنگ کا لباس پہننے پر وہ اسپیکر سے اظہار تشکر کرتے ہیں. بی آر ایس کی خاتون ارکان اسمبلی کے خلاف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی مبینہ ریمارکس پر احتجاج کرتے ہوئے آج بی آر ایس کے ارکان اسمبلی سیاہ بیچز لگا کر اسمبلی پہنچے. ప్లీజ్ కూర్చో ప్లీజ్ మీరు కూర్చోండి సభ స్టార్ట్ చేద్దాం. اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے کہا ہے کہ اسمبلی میں اصل اپوزیشن کا احتجاج جاری ہے، ایوان میں نظم برقرار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ انہیں ان کا حق یعنی موقع دیا جانا چاہیے، یا پھر اگر حکومت ان کو موقع دینا نہیں چاہتی تو حکومت کو چاہیے کہ ایوان میں نظم برقرار رکھنے کے لیے اپوزیشن کو معطل کر دے. Honorable Speaker, sir, it's been more than 1.5 hours. Major opposition is agitating, sitting here. The House is not in order. The government needs to take a decision. Either they should be given an opportunity, which is their right. If not, the government thinks, no, we will not give them an opportunity. So you bring the House in order by suspending. Either you have the courage to face them, listen to them, or you gather the courage to suspend them. You don't even have the courage to suspend them, nor you want to give them the mic. This is not the way the democracy is run, sir. Sir, I request, sir, please bring the House in order, sir. وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ایس سی درجہ بندی پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا کہ آج انصاف اور حق کی جیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ایس سیز کی ترقی کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 6 ارکان اسمبلی کو دہلی بھیج کر ایک وکیل مقرر کیا اور ان کی پہل قابل ستائش ہے. ఏడు మంది సుప్రీం కోర్టు జడ్జితో కూడిన న్యాయస్థానం 6:1గా వర్గీకరణకు అనుకూలంగా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడము, గత 30 సంవత్సరాల వర్గీకరణ పోరాటానికి న్యాయస్థానం గుర్తించడము, సానుకూలంగా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం, దాన్ని స్వాగతిస్తున్నాము. ریاستی حکومت نے غیر قانونی لے آؤٹس اور پلاٹس کو باقاعدہ بنانے کا عزم کیا ہے. اس طرح حکومت چاہتی ہے کہ جلد سے جلد درخواستوں کی جانچ کی جائے اور یہ عمل 3 ماہ میں مکمل کر لیا جائے. اگست کے پہلے ہفتے میں یہ عمل شروع کیا جائے گا. چیف سیکرٹری بلدی نظم و نسق دانا کشور نے یہ ہدایت دی ہے. ساتھ ہی ضوابط و پلاٹس کی درخواستوں کے لیے 3 مراحل پر مشتمل عمل ہوگا. 2020 سے لے کر اب تک تقریباً 25 لاکھ افراد نے اپنے پلاٹس اور لے آؤٹس کو ریگولرائز کرنے کے لیے درخواستیں داخل کی ہیں. فاسٹ ٹیگ قوانین میں آج سے تبدیلی عمل میں لائی جا رہی ہے. اس نئی تبدیلی کے مطابق 5 سال کے بعد نیا فاسٹ ٹیگ لینا پڑے گا. KYC 3 سال کے بعد کروانا ہوگا. گاڑی کا نمبر نئی گاڑی کی خریداری کے 90 دنوں کے اندر فاسٹ ٹیگ ڈیٹا بیس میں اپلوڈ کیا جانا چاہیے.
MRPS सरबराह मंदा कृष्णा मादिगा ने SC दर्जा बंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि अदल व इंसाफ की जीत हुई है। हमने 30 साल से इस मसले पर जद्दोजहद की। ये खुश आइंद बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ज़ातों की दर्जा बंदी के हक़ में फैसला सुनाया। షెడ్యూల్ కులాల వర్గీకరణ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసిందే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు. ఆయన వర్గీకరణ చేస్తామని పదే హామీ ఇచ్చి జనంలోకి వెళ్ళాడు. మాదిగలందరూ ఆయనకు సంపూర్ణ సహకారం అందించారు. వర్గీకరణ మళ్ళా సుప్రీంకోర్టు అనుకూలమైన తీర్పిచ్చిన సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం అనేది మా జాతికి భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది. రేపు వర్గీకరణ జరుగుతుంది. ఆ స్థానంలో మరొకరు కనుక ఉంటే మా వర్గీకరణ జరిగేది కాదు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినా కూడా దానికి ఏదో సాకులు చెప్పి కొంత అడ్డంకులు కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండడం వల్ల ఆ వర్గీకరణ అమలు జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि जल्द ही जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। असेंबली में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल पेश करने के बाद श्रीधर बाबू ने कहा कि जॉब कैलेंडर के मुताबिक आने वाले दिनों में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। तमाम को सरकारी मुलाजिमत देना मुमकिन नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि निजी शोबे में भी रोजगार फराहम किया जाएगा। సంబంధించి స్కూల్ ఆఫ్ ఫార్మా అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్, స్కూల్ ఆఫ్ వారి పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్ కూడా చెప్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ వారు ముందుకొచ్చి ఈ నైపుణ్యాలను పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని స్కూల్ ఆఫ్ ఫార్మా అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ విషయంలో, అదేవిధంగా స్కూల్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ విషయంలో కూడా ఈరోజు అదానీ లాజిస్టిక్స్, O9 సొల్యూషన్స్, అదేవిధంగా స్కూల్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్, ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ BFSI, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫిజిక్స్ వాలా, అదేవిధంగా స్కూల్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంటీరియర్స్, NAC వారు, నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ మా వెంకటరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, స్కూల్ ఆఫ్ రీటైల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, రీటైలర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, స్కూల్ ఆఫ్ యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ గేమింగ్ అండ్ కామిక్స్, తెలంగాణ VFX యానిమేషన్ అండ్ గేమింగ్ అసోసియేషన్ వారు ముందుకు రావటం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా 2024-25 కోసం అకాడమిక్ ప్లాన్ ప్రకారం ఈరోజు విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించి 2024-25 విద్యా సంవత్సరాల్లో 6 పాఠశాలల ద్వారా 2000 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తుంది అధ్యక్ష ఈ సంవత్సరం. మరియు మరిన్ని పాఠశాలలు, మరిన్ని కోర్సులను ప్రారంభించడానికి 2025-26లో మరో 10,000 మంది విద్యార్థులకు విస్తరం చేయటం జరుగుతుంది. पार्लियामेंट की नई इमारत में सदर जमहूरिया की लॉबी में पानी के अखराज की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई है, जिस पर बीजेपी हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। बीजेपी हुकूमत ने 1 साल पहले 1250 करोड़ रुपए के सरफे से इस इमारत की तामीर करवाई थी। कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दिलसुख नगर इलाके में कल रात एहतजाज किया। एहतजाजी चारशुम्बे की रात दिलसुख नगर में रोड पर मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गए। इन्होंने GO 46 की मनसूखी का मुतालबा किया। एहतजाजियों के हाथ में प्ले कार्ड्स थे जिस पर लिखा था, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इख्तिदार में आते ही GO 46 मनसूख करने का वादा किया था। एहतजाजियों ने इस सिलसिले में नारेबाजी भी की। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम हुकूमत की जानिब से वज़ाइफ की तकसीम का आगाज़ किया गया है। महीने की 1 तारीख को ये वज़ाइफ तकसीम किए जा रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से सेक्रेटेरिएट के स्टाफ की जानिब से ज़ईफ़ ख़वातीन और बुज़ुर्गों में ये वज़ाइफ तकसीम किए गए हैं। चिलकुर की मस्जिद की शहादत के मामले में FIR दर्ज की गई है। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड ने गांव की खातून के जरिए मजदूरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक वक्फ बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत नहीं की गई है।
कड़म प्रोजेक्ट की मरम्मत बराए नाम की गई है। प्रोजेक्ट से पानी का अखराज हो रहा है, जिसके नतीजे में पानी ज़ाया हो रहा है। औहदेदारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। हुकाम ने सैलाब का पानी कम होते ही कड़म प्रोजेक्ट के गेट बंद कर दिए। गेट नंबर 13, 14, 15 से पानी का अखराज हो रहा है, जिससे प्रोजेक्ट का पानी ज़ाया हो रहा है। केरला के वायनाड में चट्टानें खिसकने के सानहे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 251 हो गई है और अब भी 200 से ज्यादा अफराद लापता हैं। ये रियासत की तारीख में चट्टानें खिसकने का बदतरीन वाक़या है जो बारिश के दौरान पेश आया। चारशंबे की सुबह इमदादी ऑपरेशन दोबारा शुरू किए गए। ज़राए ने बताया कि मेलूकीन की तादाद और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मलबे से नाशें निकलती जा रही हैं। जगतिया जिले में सिबकदोश मुलाजमीन पुलिस की विदाई तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर मुलाजमीन पुलिस ने सारे जहां से अच्छा गीत पर बैंड बजाते हुए विदाई तकरीब को पुरजोश बना दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिल्मों में काम दिलाने के बहाने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर सिद्धार्थ वर्मा ने पुपलगुड़ा में रहने वाली इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इस्मत रेजी की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत ही मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। हाईकोर्ट ने 4.5 साल की लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के मुजरिम को फांसी की सजा बरकरार रखी। 2018 में रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी में दिनेश नामी नौजवान ने लड़की की न सिर्फ इस्मत रेजी की थी बल्कि इसका गला घोंटकर कत्ल भी कर दिया था। इस वाक़े में रंगारेड्डी जिला कोर्ट ने दिनेश को 2021 में फांसी की सजा सुनाई थी। भद्राचलम टाउन में तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल एंड कॉलेज की इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। इस तालिबा के इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। बताया जाता है कि जी असरिता नामी इंटरमीडिएट साल अव्वल बीपीसी ग्रुप की तालिबा ने ये खुदकुशी की कोशिश की। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर में बेटे के मुनासिब तौर पर तालीम हासिल न करने पर बाप ने थैले में उसे बांधकर कुंटे में फेंक दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुकामी अफराद वहां पहुंचे, जिन्होंने इसे बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल करके बाप को हिरासत में ले लिया। चोटुपल की हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे के नतीजे में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 2 लारियों का तसादुम हो गया। इस हादसे के नतीजे में सड़क पर शराब की बोतलें टूटकर पड़ी हुई पाई गई। इन बोतलों के टुकड़ों को देखते ही पुलिस मुलाजमीन बशमूल ट्रैफिक के अमले ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा किया और सड़क को अपने तौर पर साफ करते हुए शराब की इन बोतलों के टुकड़ों को वहां से हटाया और इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई।
सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा गरडीपल्ली मंडल के केटावाड़ीगुड़म पेट्रोल स्टेशन के करीब पेश आया। बताया जाता है कि मिनी टेम्पो बस लारी से टकरा गई। इस हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए। बस ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए सूर्यापेट के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अल जजीरा के सहाफ़ी इस्माइल अल गौल और उनके कैमरामैन रामी अल रफ़ी गुज़िश्ता रोज़ शुमाली गाज़ा में पनाह गज़ीन कैंप में उनकी गाड़ी पर इसराइली हमले में हलाक हो गए। वो हमास के सियासी सरबराह और ख़दावर फ़लस्तीनी मज़ाहमती रहनुमा इस्माइल हनिया के तबाहशुदा घर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिन्हें ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल कर दिया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।